So again, good morning everyone. I am Jum Bhati Nirvan, your English teacher, going to take your online classes as English, okay? So today we are going to start our very first chapter of English, which is Tom has a toothache. The chapter name is Tom has a toothache. Okay class, what is the name of chapter? The chapter name is Tom has a toothache. Tom is a boy in this chapter. We'll read about him, okay? The story or the chapter is written by the Mark Twain. Okay. Here, ache meaning. As you all know, ache meaning is pain. What is the meaning of ache? Pain. We have headache. हमें headache होता है. We have stomach. Similarly, we have toothache. दांतों में pain होना. Okay. Similarly, we have toothache. So, class, before starting the chapter, I would like to mention the main character of this chapter. That there are mainly three characters. First is Tom. Okay. पहला कौन है? Tom है. Second is Sid, and third is their aunt. Tom, Sid, and their aunt. There are three mainly characters in this chapter. So, before starting the chapter, I would like to throw a few questions for you all. Okay. Tell me how many of you did actually give an excuse before going to school? School जाने से पहले आप में से कौन-कौन excuse देता है? Okay, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे. As you know, we have 6 days working school, like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and Sunday is off. So when we reach on Saturday, we become very happy. क्यों happy होते हैं? Because Sunday will come. But when the come of next day means Monday again, you feel little bit sad. आप उदास हो जाते हो. क्यों होते हो? वैसे सारे नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं. Not everyone. Some of us like this. But I think I must say, it is not good thing like that. कि इतना सोचना, think like that अच्छी बात नहीं है कि हम स्कूल के बारे में इतना सोचे कि हमें नहीं जाना. हमें जाना होता है और हैप्पीली जाना होता है. ओके. और वैसे तो in this COVID-19 period, I think you all are realizing how important schools are, right? कि इस पीरियड में हमें पता चल रहा है स्कूल कितने इम्पोर्टेंट होते हैं. तो हमें वैसे भी प्रिटेंड नहीं करना चाहिए. अब हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं. इन दिस चैप्टर we will read about Tom who also afraid to go in school. यानी जो टॉम है उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, बहुत डरता है. उसको मंडे ब्लूज होता है. मंडे ब्लूज यानी मंडे आते ही वो डरने लग जाता है कि ओ गॉड अब स्कूल जाना होगा, क्या करूंगा मैं. ओके. सो विदाउट फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट आवर चैप्टर. लेट्स गेट स्टार्टेड. In this story, the writer has described about Tom as I have told you. राइटर ने किसके बारे में बताया है? टॉम के बारे में. एंड टॉम कौन है? एक बॉय है जो स्कूल जाने से डरता है. क्लियर एवरीवन? आई होप समरी क्लियर है सभी को. सो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. A young boy experiences Monday blues. As I have told you, what is the meaning of Monday blues? Monday blues means sadness. You have to write the word meanings. Blues means sadness. Monday blues. Monday आते ही थोड़ा सा उदास हो जाना. Okay. And tries to invent a reason to skip school. And the boy tries to make a reason, try to find out a reason to skip the school. यानी एक जो बॉय है वो क्या करता है? ऐसे ऐसे रीजन ढूंढता है कि वो कैसे स्कूल ना जाए. ओके. So the chapter starts from here. Monday morning found Tom Sawyer miserable. Miserable means dukhi, sad. Okay. Monday morning that boy Tom was very sad. Monday morning always found him so because it began another week slow suffering in the school. ऐसा क्यों लगता था उसे? क्योंकि ये लगता था कि अब ये वीक बहुत लेट जाने वाला है. 6 days are very very like a burden for him. कि वो उनको burden समझता था 6 days को कि कब अगला मेरा सैटरडे आएगा और कब संडे आएगा, मैं कब एंजॉय करूंगा. Okay, he generally began that day with wishing he had no intervening holidays. और क्या सोचता था वो? हमेशा क्या विश करता था कि ऐसा ना हो कि यहाँ कोई हॉलीडे नहीं आएंगे 6 days के बाद, अब मैं कैसे फिर घर बैठूंगा, काश संडे हमेशा रहे. ओके. तो यार the intervening meaning is occurring in between. Okay. Holiday. It made the going into captivity. Captivity means, here the meaning of captivity is the state of being kept in a place.
The meaning of captivity is the state of being kept in a place, किसी को बंद कर देना एक कमरे में या किसी प्लेस पे बंद कर देना. And fetters, fetters meaning chains used to keep someone prisoner. Prisoner means यानी किसी को बांध कर रखना, अंदर कैद करके रखना. Again so much more odious. The meaning of odious is disgusting or extremely unpleasant, जो कि उसके लिए बहुत ही unpleasant होता है. Like in this para, what we read that in the Monday morning, Tom found miserable. Tom क्या लगता है बहुत ही sad दिखाई देता है, miserable है ना. And then he thinks like that the another week was very slow suffering. कि क्या होने वाला है कि another week जो आएगा यानी will be very slow suffering, बहुत ही स्लो जाने वाला है. He thought that there is no holiday in this week. और उसे ये भी लगता था कि अब मेरा संडे निकल गया है, अब तो कोई हॉलीडे भी नहीं है इस वीक में, तो मैं कैसे मेरा टाइम निकालूंगा. सो ही बिहेव्स लाइक अ प्रिजनर. और किसकी तरह बिहेव करता है, जैसे कि वो क्या हो, एक प्रिजनर हो, कैदी हो. एंड थॉट someone kept him in a one place. और क्या सोचता है कि किसी ने उसे बंद कर दिया. लाइक ये उसकी assumption होती है, वो ऐसा सोचता है कि संडे जा रहा है, मंडे से लेकर जो सैटरडे तक का टाइम है वो एज अ प्रिजनर सोचता है कि स्कूल जाना होगा, ऐसे करना होगा. ओके, नेक्स्ट पैरा इज टॉम ले थिंकिंग. टॉम लेटा हुआ है और सोच रहा है. ओके, presently it occurred to him that he wished he was sick. First what he thinks that suppose that I am sick, कि मैं बीमार हूँ, वो ऐसे सोचता है अपने बारे में. Then he could stay home from school. तो अगर वो बीमार होगा तो क्या होगा, घर पर रह सकता है. ओके, as he thought. किसने सोचा, टॉम ने. अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो मैं घर पर रह सकूंगा. Here was a vague possibility. यहाँ पर possibility है. Vague means unclear. Vague means unclear. उसने साथ साथ ये भी सोचा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है. He canvassed means tried to discover some information by asking, okay, the system. He canvassed his system. उसने इसको discover करने की कोशिश की. Discover means सबको बताना चाहा कि मैं आज बीमार हूँ. No elements were found. Elements here any illness. Elements here any illness that is not very serious. कि ऐसी चीज जो हमें सीरियस दिखाई नहीं दे रही, ऐसी बीमारी, ओके, was found. कोई ऐसी चीज उसमें दिखाई नहीं दी. एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन. देन ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन मीन्स उसने वापस उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया. बहुत सीरियस हो गया अपने मैटर को लेके कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे स्कूल जाना ना पड़े. ओके, this time he thought could detect colicky symptoms. Colicky means suffering from a severe pain in the stomach. Okay, पेट का दर्द. कि उसने धीरे धीरे क्या फील करना स्टार्ट किया कि उसने क्या सोचा कि शायद कॉलिकल सिम्टम्स बता देता हूँ, यानी पेट का दर्द बता देता हूँ. एंड ही बिगेन टू एनकरेज देम विद वेट. एंड ही began to encourage them with considerable hope. और उसने ये कंटिन्यू किया, अपना पेट का दर्द बताना स्टार्ट कर दिया. But they soon grew feeble. The meaning of feeble is low or dull. Meaning of feeble is low or dull. But धीरे धीरे ऐसा कुछ फील नहीं आया कि मैं पेट का दर्द शो करूं, और वो बिल्कुल फीबल होने लगा. And presently died wholly away. यानी और बाद में बिल्कुल ही गायब हो गया. अब पेट का दर्द हमारे बुलाने से तो नहीं आएगा ना, तो उसको कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे. He reflected further. अब उसने आगे सोचा, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए. Suddenly he discovered something. उसे कुछ मतलब कुछ ध्यान आया. Discovered यानी कुछ वैसे तो दिखाई देना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सडनली एक बात ध्यान आती है. क्या बात ध्यान आती है, वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वाज लूज. कि उसका अपर टीथ जो है, एक टीथ में से जो अपर वाला टीथ है वो क्या है, लूज हो चुका है. दिस वाज लकी. और ये इस टाइम पे अपने आप को क्या फील कर रहा था कि लकी हूँ कि मुझे टीथ का मेरा कुछ दर्द पेन दिखाई दे रहा है, तो मैं इसका रीजन बनाकर स्कूल नहीं जाऊंगा. He was about to begin to groan as a starter. Groan means deep sad sound. Deep sad sound, बिल्कुल sad सा साउंड बना के, और as a starter यानी अब रोना स्टार्ट करने ही वाला था कि सब आ जाए. सब कौन है इस फैमिली में, सिड है और उसकी आंट है. ओके, ऐसी कॉल्ड इट.
When it occurred to him that if he came into court with that argument, जब इसको ध्यान आया कि अभी इस आर्ग्यूमेंट पर बात चलेगी, his aunt would pull it out, और क्या होगा, उसकी आंट क्या करेगी, इसको पुल आउट कर देगी। किसको? टूथ, जो उसका टूथिंग हो रहा था उसको पुल आउट कर देगी। ये अभी सोच ही रहा है कि अगर ये रीजन देता हूँ मैं मेरी आंट को कि मुझे टूथिंग हो रहा है, और आंट आकर उसे क्या कर देगी, निकाल देगी, and that would hurt, जो कि मुझे बहुत दर्द करेगा, पेन होगा मुझे। So he thought he would hold the tooth in reserve for the present, यानी उसने सोचा अभी रहने देता हूँ and seek further, और आगे के बारे में सोचने लगा। Like first what he think? He thought about a stomachache, and then he thought about his toothache, but he neglected all the situation. उसने उनको भी neglect कर दिया। क्यों? stomachache तो हो नहीं रहा था, and then toothache में उसको क्या ध्यान आया कि आंट आकर उसको निकाल देगी तो उसे दर्द होगा, इसलिए उसने वो रीजन भी नहीं बताया। Nothing offered for some little time. थोड़ी देर तक उसे कुछ ध्यान नहीं आया। Okay, he remembered nothing till some time. Then what happened next? See. And then he remembered hearing the doctor tell about a certain thing that laid up a patient or 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a finger. यानी उसे सडन याद आता है कि एक बार उसने सुना था कि किसी डॉक्टर ने अपने पेशेंट को ये बताया था कि अगर आपकी टो में दर्द है, यानी पैरों में दर्द है, टो में दर्द है, तो आपको बेड पर रहना पड़ेगा और उससे आपकी फिंगर्स भी वर्क नहीं करेगी। ओके, तो उसे सडन याद आता है टो का दर्द, और उसने बताया कि इसमें हमें आराम भी करना होता है। ओके, तो उसने सोचा ये वाला बहाना बहुत अच्छा है, प्रिटेंड करना अच्छा है। सो द बॉय ईगरली ड्रू हिज सो टो फ्रॉम अंडर द शीट एंड held it up for inspection। कि बॉय ने क्या किया, उसको अपने टो को बाहर निकाला और उसको पकड़ के बैठ गया और थोड़ा उस पर ट्राई करने लगा कि अब मुझे इसके बारे में सबको बताना है कि मुझे पेन हो रहा है या मुझे स्वेल हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है। ओके, सो मीन होता है इंजर्ड, सो मीन्स क्या है, इंजर्ड। ओके, But now he did not know the necessary symptoms. लेकिन अभी भी उसे necessary symptoms नहीं पता थे। Symptoms mean indications कि क्या होते हैं, actually symptoms क्या होते हैं इसके। Pretend तो कर लिया, but symptoms नहीं पता है। However, it seemed worthwhile to chance it. So he felt groaning with considerable spirit. उसने क्या किया, लेकिन इस चांस को जाने नहीं दिया कि भाई ये तो मेरे लिए अच्छा चांस है, तो उसने इसको कंटिन्यू रखा एंड ग्रोनिंग स्टार्ट रखी। ग्रोनिंग मींस टू मेक अ डीप सैड साउंड बिकॉज यू आर इन पेन। ऐसा साउंड निकालना कि आप पेन में हो, चिल्लाना, रोना और दर्द के मारे सबको बुलाना। ओके, इन दिस सेकंड पैरा व्हाट वी हैव रेड दैट Tom lies on the bed and he wakes up and first feeling that he has मंडे ब्लूज, कि उसने क्या सोचा कि मंडे ब्लूज है, यानी उसको बहुत फील अजीब सी घबराहट हो रही थी स्कूल जाने के लिए। ओके, then he was very afraid that he will have to go school, उसे स्कूल जाना पड़ेगा। he is not willing to go school, अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाने के लिए। suddenly he thinks of some excuses and tries to make some excuses to not to go to school। उसने क्या किया, excuse बनाने start किए कि स्कूल ना जाना पड़े। First he thought about that he had a stomach, then he neglected that because there were no stomach ache, है ना, and then he decided to tell her aunt or his aunt or his brother that he had that toothache। okay, कि उसे toothache हो रहा है, लेकिन उसमें भी उसे थोड़ा नहीं अच्छा लगा कि ये बताऊंगा तो aunt will come and pull out my tooth, आंटी आएगी और मेरा टूथ निकाल देगी। then he neglected then again। Then he realized about one day he heard a doctor who was considered his patient that if you have any toe problem you have to take rest within 2 or 3 days। यानी आपके अगर टो में पेन है तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज योर फिंगर्स विल नॉट वर्क, आपकी फिंगर वर्क नहीं करेगी। तो ये जो प्रिटेंड था ये उसे बहुत अच्छा लगा कि हाँ अगर ऐसा मैं बताऊंगा तो क्या होगा, मुझे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा और मुझे रेस्ट करने को मिल जाएगा 2-3 days। ओके, इन नेक्स्ट पैरा बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस। अब सिड कौन है, उसका ब्रदर है, वो चिल्ला रहा है, ग्रोन कर रहा है, यानी दर्द के मारे लोगों को बताना चाह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है।
बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस, लेकिन सिड तो बिल्कुल सोया हुआ है, बिल्कुल उठा नहीं है। ओके, सिड कौन है? हिज ब्रदर। टॉम ग्रोड लाउडर, टॉम जोर से चिल्लाने लगा एंड fancied that he began to feel pain in the toe, और ये बताने लगा, fancied is the second form of fancy, the second form of fancy is fencing, यानी किसी को अट्रैक्ट करना खुद की तरफ या फिर किसी को कुछ शो करना, to show or attract someone। यानी उसने अपने ब्रदर को अट्रैक्ट या शो करने के लिए क्या किया, जोर जोर से और चिल्लाने लगा और अपने टो को बाहर निकाल दिया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नो रिजल्ट फ्रॉम सिड, अब सिड से वापस कोई रिजल्ट, वो तो अनकॉन्शियस था, सोया हुआ था। Tom was painting with his exertion by this time. Yeah, painting means the breathe quickly, to breathe quickly, painting, to breathe quickly, जल्दी से breathe लेना, और with his exertion, meaning of exertion here फिजिकली और मेंटल एफर्ट, यानी उसने बहुत तरीके से उसको फिजिकली और मेंटल एफर्ट से जगाने की कोशिश की। देन उसको शुक करना स्टार्ट कर दिया, यानी हिलाना स्टार्ट कर दिया कि उठो, मुझे दर्द हो रहा है। He took a rest on the swell himself up the fetch, a succession of admirable growth. Sid slowed on. उसने क्या किया उसके बाद, उसको कैसे कैसे जगाने लगा और अपना जो स्वेल टो है यानी जो प्रिटेंड किया था उसे दिखाने लगा। ओके, fetch का मीनिंग होता है bring, fetch is the second fetch second form is fetched and the meaning of fetch is bring। उसने अपना जो ग्रोनिंग थी स्टार्ट कर दी। सिड स्नोर ऑन, सिड अभी भी, स्नोर का मीन क्या होता है, खराटे लेना, सिड अभी भी खराटे ले रहा था, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ओके, टॉम वॉज irritated, टॉम क्या हो गया, एनॉयड हो गया, गुस्सा आने लग गया कि उठ क्यों नहीं रहा है, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ फिर भी he is not reacting। He said, "Sit, sit." उसने जोर से चिल्लाया, "Sit, sit," and shook him, और उसे हिलाया जोर से। Okay, this force worked well, और ये काम कर गया। हिलाने के बाद क्या हो गया, सिड उठ गया है। Okay, and Tom began to groan again, and Tom started crying. Tom वापस रोने लग गया, groaning करने लग गया। Sid yawned, Sid ने उबासी ली, stretched himself, और अपने आप को stretch किया, then brought himself up his elbow with the snort, और थोड़ी सी अपनी एल्बोस की तरफ मारी। एंड स्नॉट मीनिंग क्या होता है बेटा, यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ स्नॉट, टू ब्लो आउट एयर नॉइजली एज अ वे ऑफ शोइंग दैट यू डोंट लाइक समथिंग, जोर से मुंह से हवा निकालना उफ करके। ओके, कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो किसी की बातों से। तो एज इट वाज इरिटेटेड विद टॉम, अभी अभी उठा है, उठते ही आपको अगर कोई बोलेगा कि ये है तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही सिड का बिहेवियर था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसने अपनी एल्बो मारी उसको एंड बिगेन टू स्टेयर एट टॉम। स्टेयर मींस टू लुक समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी को लंबे समय तक देखना या फिर घूरना। टू बिगेन टू स्टेयर एट टॉम, टॉम को स्टेयर करने लगे, घूरने लगे। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, टॉम अभी भी स्टार्ट है रोने में, दर्द के मारे चिल्ला रहा है कि मुझे पेन है, मुझे पेन है, मुझे पेन है। ओके, सिड सेड, टॉम सेड, टॉम, there was no response from Tom। सिड ने कहा कि टॉम बोलो क्या हुआ है, you are continuing your crying, बस tell me the thing, what happened with you, आपके साथ हुआ क्या है, tell me, who is asking? Sid। There was no response from Tom, टॉम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। टॉम तो बिल्कुल रोने में ही बिजी था कि अगर मैं रिस्पॉन्स दिखाऊंगा तो ये समझ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिटेंड कर रहा हूँ, इसलिए उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस रोए जा रहा था, कंटिन्यूअसली he was crying। Then, "Hey Tom, Tom, what is the matter, Tom?" Again Sid is asking him, "Tom, what is the matter? Tell me." And he shook him and looked in his face anxiously. Okay, उसका फेस देखा, उसकी तरफ उसको शुक किया और उसका फेस देखा, और anxiously मीन क्या होता है, full of mental distress, डर गया था सिड कि टॉम को हुआ क्या है, क्यों रो रहा है वो इतना। तो उसके डर के मारे उसने क्या किया, उसे शुक किया, एंड टॉम टेल मी समथिंग, व्हाट हैपेंड विद यू। टॉम मोन्ड आउट, टॉम ने थोड़ी सी देर में आवाज निकाली। मोन्ड आउट मीनिंग कि उसने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया। मोन मीनिंग होता है बेटा टू मेक अ लो साउंड बिकॉज यू आर इन पेन, यानी उसने क्या प्रिटेंड किया कि बोल तो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे बोल रहा है ताकि उनको रियलाइज हो कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दैट्स व्हाई आई कांट स्पीक। ओह डोंट सिट, ओके, डोंट जॉगल, जॉगल मींस यार मूव और मेक समबडी मूव क्विकली। उसने क्या कहा सिड को, सिड प्लीज डोंट मूव मी, मुझे हिलाओ मत, मुझे शेक मत करो क्योंकि मुझे पेन हो रहा है। Why, what's the matter, Tom? I must call auntie।
कि ऐसा क्या हुआ टॉम, मुझे बताओ तो सही, मुझे आंटी को बुलाना चाहिए। जो उनकी थर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली है, उन्होंने क्या कहा कि आंटी को हम बुला लेते हैं। नो नेवर माइंड, ऐसा कुछ नहीं है, आई विल बी ओवर सून, मे बी, डोंट कॉल एनीबॉडी। ओवर सून मींस हियर ही इज प्रिटेंडिंग लाइक कि अब मैं मरने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं जाने वाला हूँ, मेरा टाइम आ गया है, डोंट कॉल एनीबॉडी, किसी को मत बुलाओ, बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन सो। टॉम ने क्या बोला, लेकिन मैं तो बुलाऊंगा, आप इस तरीके से रो रहे हो, आप इस तरीके से अपना मतलब सैड साउंड जो निकाल रहा था, पेन में हो, तो मैं आंट को बुला लेता हूँ। Who said this? Sid said this. Okay, how long you been this way? तुम्हें कितना टाइम हो गया इतना दर्द होते हुए? Hours. Ouch. Oh, don't be stir so. Stir mean move. Stir, sorry, stir mean move. Stir का मीनिंग भी क्या होता है? Move होता है। यानी उसने पूछा आपको कितना टाइम हो गया? बोले कुछ घंटे हुए हैं। फिर ouch साउंड निकालने लग गया दर्द की, और क्या कहा साथ साथ, प्लीज डोंट मूव मी, मुझे मूव मत करो। सिड यू विल किल मी, सिड तुम मुझे मार दोगे इस तरीके से मूव करके, यानी मुझे इतना पेन हो रहा है कि कोई मूव कर रहा है तो मुझे अच्छा पेन नहीं हो रहा है। उसने सिड को क्या कहा, यू विल किल मी। टॉम व्हाई डिडंट यू वेक मी सूनर, टॉम आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। ओ टॉम डोंट इट मेक्स मी फ्राइटेंड टू हियर यू, टॉम व्हाट इज द मैटर। अब सिड उससे बार बार पूछ रहा है, प्लीज टेल मी द मैटर, प्लीज टेल मी द मैटर, व्हाई डिडंट यू वेक मी अर्लियर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, इतना दर्द हो रहा है आपको और आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग, सिड ग्रोन। अब सिड क्या है, थोड़ा प्रिटेंड करते करते बोलता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जो भी तुमने मेरे साथ किया था। नहीं तो नहीं होता ऐसे फीलिंग शो करना कि बस मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं दर्द में कुछ भी बोले जा रहा हूँ। एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी व्हेन आई एम गॉन, कि भाई अगर मैं चला जाऊं तो जो भी तुमने मेरे साथ किया है मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया उसके लिए। ओ टॉम यू आर नॉट डाइंग आर यू, और टॉम तुम नहीं मरने वाले हो, आर यू, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है। यानी सिड ने पूछा टॉम से, ही वाज प्रिटेंडिंग लाइक दैट ही इज गोइंग टू डाई। आई फॉरगिव एवरीबॉडी, मैंने सबको माफ कर दिया। सिड ग्रोन, सिड ने बोला और वापस चिल्लाने लग गया दर्द के मारे। टेल देम सो, उन्हें भी बता देना। सिड and said, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl that's come to the town and tell her। यानी उसने अपनी सारी बातें स्टार्ट कर दी कि अगर मैं मर जाऊंगा तो आप ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसा करना, वैसा करना, यानी यहाँ तक से बातें करनी स्टार्ट कर दी है, उसको तो वो बता चुका है। ठीक है, सो इन थर्ड पैरा व्हाट वी हैव रेड, टॉम हैज लूज टूथ, टॉम की क्या था, बिल्कुल लूज टूथ था। एंड व्हाट ही थिंक्स, उसने क्या सोचा, in below para I am going to tell you again the below para what he thinks that I will go to my aunt and convey this thing, maybe she will take care of me। मैं जाऊंगा आंट के पास और वो मुझे शायद बचा लेगी या ध्यान रखेगी मेरा। she will not let me go to school, वो मुझे जाने नहीं देगी। but suddenly he realized, उसको एक at the same time उसने सोचा, if he goes to tell the aunt then aunt will take out the tooth, एंड क्या करेगी, उसका दूध बाहर निकाल लेगी, एंड इट विल गिव मी मोर पेन, और ये मुझे क्या देगा, बहुत ज्यादा दर्द देगा। So again he became sad and think about the another reason। फिर उसको ध्यान आया डॉक्टर ने क्या कहा था, as I have told you। ठीक है, then he started to continue groaning। ओके, उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करते करते उसने किसको उठाया, सिड को उठाया। सिड वो सिड या उसका ब्रदर है। ओके, ब्रदर को उठाते ही उसने कहा, सिड को थोड़ा डराया, सिड आई एम गोइंग टू डाई, आई विल डू दिस, आई एम गोइंग टू, मतलब मैं कुछ भी कर लूंगा ऐसा है, और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो, ऐसे मतलब प्रिटेंड कर रहा है सारा, वहां पर एक सीन क्रिएट कर रहा है कि इनको लगे कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एंड सिड वाज वेरी एनेक्सियस, यानी बहुत डर चुका था सिड कि भाई ये क्या हो गया इसके साथ। Then in the further para will read, but Sid had snatched his clothes and gone। सिड ने क्या किया, उसका हैंड स्नैच किया और चला गया। किसको बुलाने गया वो, अपनी आंट को। Tom was suffering, Tom क्या था, suffering in reality, now so handsomely was his imagination working, and so his groan has gathered quite genuine tone। Genuine means real tone। अब जो वो इतनी देर से जब pretend कर रहा था ना, इतनी देर तो नहीं समझ में आ रहा था इसके साथ क्या हुआ, लेकिन जैसे जैसे pretend और ज्यादा आगे तक करता गया तो उसका जो टोन था वो बिल्कुल genuine लगने लग गया। Genuine means बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था कि हाँ इसे सच में पेन है। ओके, तो उसे ऐसा फील हुआ कि शायद इसे पेन है। सो क्लास, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग चैप्टर वी विल बी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू प्रैक्टिस ऑफ द वर्ड मीनिंग्स व्हाटएवर आई हैव गिवन यू।